बस अल्लाह खैरियत रखे। आजकल डर भी बड़ा लगता है सेहत का सुन के। यस कुछ मैम। मैम हालात फिर भी मैं ऐसे हैं। मैं प्रेजेंट जी, कर दूं या क्यूरीज आप डिस्कस आप कर? अपना नाम बता दो पहले बेटा। डॉक्टर सबा। सबा। ओके सबा जी। सबा आपने प्रेजेंट करना है। फाइब्रॉइड का केस है मेरे पास, अगर आप कहते हैं तो वो कर लेती हूँ, वरना हाँ, क्यूरीज लेट्स डू डिस्कस फाइब्रोइड। कर। इट्स ओके, लेट्स डू फाइब्रोइड। डॉक्टर यूसुफ की एक्चुअली एक टॉर्जन वाली इमरजेंसी सर्जरी थी, तो वो ही जस्ट कुडंट कम, तो फिर उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने कहा आप लोग सब आए भी हुए हो तो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, और फिर इसलिए फिर क्लास मैंने कर ली अरेंज। ठीक है, चलो सबा आप करो प्रेजेंट। ओके मैम। मिसेज आपदा, वाइफ ऑफ मिस्टर उमर, 35 years age, not formally educated, housewife. She is married for last 30. She is married for last 20 years. Para 5 with no miscarriage, previous normal vaginal deliveries, and last childbirth is 5 years, 4 years back. Her last menstrual period was on 10th of March 2021, and she is resident of Okada, which is half a distance from the Index Hospital, where she is admitted by outpatient department on 11th of March 2021 with a presenting complaint of abdominal mass from last 4 years and lower abdominal pain from 4 days. My patient was in usual state of health 4 years back when she was pregnant with her last child. At the 7th month of gestation, she got to know about some pelvic mass when she underwent ultrasonography and was advised to have elective lower segment cesarean section due to that mass. But she underwent in the spontaneous onset of labor and delivered the child. At the 3rd month postpartum, she was offered conservative and surgical management, and she opted for the conservative management as she was having no symptoms. From last 4 years, she was asymptomatic, and from last 4 days, she is giving history of lower abdominal pain, which is sudden in onset, continuous in nature. It is localized to the lower half of the abdomen, the central part also involving the right and the left side of the lower abdomen, and it is continuous in nature and is stretching in stretching in nature and stretching in character, radiates to her leg and her back and aggravates by doing household work and relieves by taking rest. She only gets relieved when she takes rest and is unable to carry out the normal activities of her life. And there is no history of any menstrual irregularity, urinary or the bowel complaints, as she is having a regular menstrual cycle of 3 by 30 with average flow, soaking one pad per day, homemade pad, and no history of passage of clots, flooding, and the soaking of undergarments. No history of pain during menstruation, pain during coitus, intermenstrual bleeding, and postcoital bleeding. No history of any amenorrheic spell. History of on and off vaginal discharge prior to the menstruation, thin in the consistency, whitish in color, non-foul smelling, non-itching, and resolves after the resolution of the menses. No history of fever with the lower abdominal pain and the foul smelling vaginal discharge, with no history of fever, low grade fever, cough, and the bleeding in the sputum, personal or the contact with the tuberculous patient. And she is having a history of feeling of mass abdomen from last 4 years, but no history of loss of appetite, early satiety, indigestion, along with frequency, urgency, urinary retention, and previous catheterization for the urine removal of her urinary stresses, and no history of corrected bleeding, constipation, painful defecation, hemorrhoids, and prominence of veins over the legs, along with pedal or the leg edema. But there is history of 4 years back, there is history of pelvic tuberculosis for which she underwent, for which she was medically treated for 9 months, and she is not able to lie properly on the couch, and not lie properly straight on the couch, and she felt pain when she tries to lay straightly, and she mostly adopt the position of lateral position in lying down. And but there is no history of feeling of lump anywhere in the body, any history of weight loss or the chest pain, headache, impairment of the vision, joint pain, bone pain, or any family history of uterine, colorectal, ovarian, or the breast malignancies. For this problem, she was referred to the tertiary care and was advised admission. During her admission, her blood pressure and the certain blood monitorings are also being carried out. She is not having any comorbidity. However, the further plan of management is not discussed with her. She is para 4 with normal general deliveries. Her all deliveries are carried out in the some private hospital, and there is no history of any antenatal, internatal, and postnatal complications, and no history of blood transfusion previously. She is non-smoker, non-addict, having no chronic drug allergies, having the good diet, and previously not having any contraception practiced. Only the valid contraception she has been practiced from the last 4 years, and no history of ovulation induction taken, and all the conceptions were the spontaneous conception.
She is belongs to a lower socio-economic status. Husband is a laborer earning 15,000 per month, and the basic necessities of life are met with difficulty. Lady sitting comfortably on sitting comfortably on couch, well oriented to my time, place, and person. Her body mass index is 28 kg per meter square. She is not looking pale, and no any koilonychia, jaundice, clubbing, or cyanosis was present. Her vitals are pulse is 82 beats per minute. Blood pressure is 110 by 70 millimeter of mercury. She is afebrile, and her respiratory rate is normal. And oral dental hygiene is satisfactory. Thyroid is not enlarged. All the accessible lymph nodes are not palpable. Breast examination shows normal looking breast with no any mass palpable in all of the four quadrants of the breast and no nipple discharge menstruated at time of examination. Cardiovascular examination reveals apex beat at the fifth intercostal space and first and second heart sound with no added murmur. Chest examination shows normal vesicular breathing with no added sound, no any sacral deformity or the spine deformity was present, and no pedal edema was present. And abdominal examination shows abdomen moving with the respiration, is distended with centrally placed umbilicus, and no striae, scar mark, or the pulsation seen over the abdomen. It was soft, non-tender on palpation, and there is a mass of about 28 week size present in the occupying the umbilical and the hypogastric region. It is firm in consistency with regular margins and smooth contour, mobile, non-tender, dull on percussion, but the whole of the abdomen was resonant. The rest of the abdomen was resonant, and no shifting dullness, no splenomegaly. Pelvic examination reveals vulva vagina normal. Sterile speculum examination shows cervix pushed up with dead mass, but no discharge oozing out from the cervix, and the vaginal wall were healthy. Bimanual examination shows mass of the 28-week size with the regular margins. Uterus not felt separately from dead mass. It was mobile, non-tender, and the adnexa was clean. ठीक है. और no blood on your fingers when you finger store, वो जो कहते हैं. There was no bleeding. Bleeding at discharge. ठीक है. I think it was very good. बहुत अच्छी आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन था. किसी ने कोई चीज ऐड करनी है तो बता दें इसमें. हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन में. हिस्ट्री से अगर थोड़ा सा हिस्ट्री से शुरू कर लेते हैं, फिर हम इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट सारी डिस्कस कर लेंगे. आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड हिस्ट्री सभा. बहुत अच्छी थी. इसमें बल्कि चीजें ऐड करने के बजाय जो इसमें अच्छी बातें आपने की वो मैं इसलिए दोबारा थोड़ा जल्दी से बता देती हूँ ताकि किसी मेजोरिटी ने, ज़ाहिर है हम सबने सुनी है, बट इसमें यू न्यू कि ये चीजें आनी चाहिए. एक्चुअली इट्स अ केस ऑफ मैस एंड पेन एब्डोमेन. जब मैस और पेन का हो केस तो फिर वो ज्यादा डीडी जाता है ओवरी की तरफ इंस्टेड ऑफ यूट्राइन मैस. यूट्राइन एनोमलीज या यूट्राइन मैस या यूट्राइन एंडोमेट्रियल थिकनेस, ये सारी चीजें प्रेजेंट करती हैं विद ब्लीडिंग. उसके अंदर पेन और मैस के साथ नहीं होता. हम वैसे एक क्लास करेंगे, बल्कि याद कराना एक डीडी की. अभी मेरे ख्याल है जून में है ना आप लोगों का एग्जाम. यस मैम. है ना. तो चलो जून में अभी तो टाइम है, लेकिन एक क्लास याद कराना. मैं आप लोगों की ना डीडी की करूंगी कि हाउ टू मेक डीडी, और जो एग्जाम में डीडी डिस्कस होता है वो डिस्कशन कैसे करनी है और उसको अपने अपनी डीडी को जस्टिफाई कैसे करना है. मैंने आपसे डिस्कस करने का इसलिए सोचा क्योंकि मुझे इसकी डीडी में कंफ्यूजन थी, बिकॉज ये सारी लोअर लिमिट सारा जो पिक्चर थी, इसलिए मैंने ये केस किया. एग्जैक्टली. देखो शुरू में आपने हमें तो कह दिया कि फाइब्रॉइड का केस है. एग्जाम में तो हमें नहीं पता होगा. इवन पेशेंट अपने मुंह से भी कह रहा हो तो हमने तो अपनी क्लिनिकल असेसमेंट करनी है ना उसमें कि वो है क्या. जब भी पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर रहा है मैस और पेन के साथ बट देयर इज नो ब्लीडिंग, तो इट्स मोर लाइकली एन ओवेरियन मैस. अगर एक्सक्यूज मी साथ में ब्लीडिंग एडेड होगी तो वो फाइब्रॉइड की तरफ जाता है या यूट्राइन एब्नॉर्मेलिटी की तरफ जाता है. ठीक है. तो बट द थिंग वाज कि क्योंकि पेशेंट वाज टेलिंग द डॉक्टर के वो फोर्थ जब उसका लास्ट चाइल्ड बॉर्न था 4 इयर्स का, तब 7th मंथ से उसको अल्ट्रासाउंड पे बता दिया गया था कि यूट्राइन मैस है. इसलिए पहले सबा ने सारी हिस्ट्री मैस की ज्यादा ली और फाइब्रॉइड की तरफ लेके गई. इवन के कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ फाइब्रॉइड भी सारा हिस्ट्री में बताया रिगार्डिंग फीवर, पेन एंड ऑल दैट. हाउएवर एंड पे आके विच वाज गुड कि इन्होंने जस्टिफाई किया कि यानी कि ओवेरियन सीए या ओवेरियन मैस या ओवेरियन सिस्ट से रिलेटेड भी सारी डीडी को उन्होंने जस्टिफाई किया, जैसे कि ओव्यूलेशन इंडक्शन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीओ, ओवरी ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट फीडिंग, वो सारा कुछ आपने एचओपीआई में ही बताना है. ये भी इसकी वजह सिर्फ ये थी कि इस पेशेंट ने कह दिया कि उसको अल्ट्रासाउंड पे 4 इयर्स बैक ही बता दिया गया था कि यूट्राइन मैस है. लेकिन अगेन आप चलो ठीक है, उस वजह से उन्होंने फाइब्रॉइड वाली चीज पहले कर दी और उसके बाद, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो
मैम जस्ट अ जी जी सेकंड, सब। पेशेंट ने मुझे कहा था कि मुझे अंडादानी में मसला बताया, उसने मुझे नहीं कहा था, और इवन जब मैं एग्जामिनेशन करने लगी तब मुझे फील हुआ कि ये तो यूट्राइन मैस है, और तब मुझे आपको लगा, अगर तो ओवेरियन बता पेशेंट ने भी नहीं आपको बताया, जैसे कि अगर पेशेंट भी आपको कह रही है कि अंडेदानी में है, वो बिल्कुल भी नहीं बता सक रही कि क्या था, लेकिन कहती है कि एक रसौली थी, तो फिर पहले तो ये ओवेरियन ओवेरियन मैस है, इट्स एन ओवेरियन सिस्ट और सम ओवेरियन मैस। फिर आप उसके डीडी में पहले सारी हिस्ट्री ओवेरियन वाली ही रखोगे। बल्कि इसके अंदर एक थोड़ी सी बुरी बात ये भी आ गई कि टीबी की भी हिस्ट्री आ गई बीच में। लेकिन खैर बहरहाल इसके अंदर आपने सारी जो हिस्ट्री है ना, आपने ओवेरियन वाली ही लेके फिर इनिशियली चलनी है। उसके अंदर आप पेन को तो चलो साथ करोगे, लेकिन जो आपने आखिरी एंड में जाके डीडी निकाली थी ना ओवेरियन की, के ओवुलेशन इंडक्शन और वो सारी चीजें, वो फिर आप उससे पहले बोलोगे। फिर मैं आपको इसका पैटर्न बताती हूँ हिस्ट्री का। प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ द पेशेंट वाज मैस एब्डोमेन एंड पेन ऑफ द एब्डोमेन, राइट। उसके बाद आपने जब मैस को डिस्क्राइब करना है, तो आपने पूरा बताना है कि उसको स्मॉलर इन साइज था इनिशियली, और अब उसे बड़ा फील हुआ, मोबाइल टेंडरनेस और वो सारा। फिर बिकॉज इसको पेन थी, तो पेन का सारा बता के, जो आपने बिल्कुल ठीक बताया, फीवर और टेंडरनेस को साथ एसोसिएट करके, बिकॉज इट कैन बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम मैस, पेल्विक मैस, तो वो आपने बता के, उसके बाद पहले आपने डीडी सारा निकालना है ओवेरियन का। फिर आपने उसकी मिनार्की, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आपने पहले सारा ब्लीडिंग और वो सारा पैटर्न बताया था, वो फिर आप, फाइब्रॉइड का डीडी तो फिर एंड पे चला गया। फिर जब आपने एग्जामिन किया पेशेंट को, यस यू थिंक कि बिकॉज इट्स सो फर्म, बट अगेन यू नेवर नो आपको अल्ट्रासाउंड की जरूरत होगी। एग्जामिनेशन के अंदर आपने लोअर लिमिट का जिक्र नहीं किया कि लोअर लिमिट रीचेबल थी या नहीं थी, और बाकी ठीक है मैम, सारा, आई थिंक। हाँ, इट वाज रीचेबल। लोअर लिमिट वाज रीचेबल, ठीक है। फिर आपका एग्जामिनेशन कोरिलेट नहीं कर रहा विद योर बायोमैनुअल एग्जामिनेशन, स्कैन बिकॉज यू सेड, पोस्टीरियर वॉल सॉरी फाइब्रॉइड सर। था, स्कैन पे नहीं, स्कैन फाइब्रॉइड। को रहने दो, देखो स्कैन को रहने दो, स्कैन तो कम्प्लीटली बदला बदल जाएगा ना। एग्जामिनर जो है आपको स्कैन कुछ भी दे सकता है, तो आपने भी, तो हमने स्कैन की बात ही नहीं करनी। आपने करना है कि आपने अभी तो ये बताओ ना, आपने जब एग्जामिनेशन पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बताया तो लोअर लिमिट रीचेबल है, ठीक है, वो यू फॉरगॉट टू मेंशन दिस। बाकी सारा एब्डोमिन वाला एग्जामिनेशन ठीक था। उसके बाद जब आपने क्या बताया, पेल्विक एग्जामिनेशन, उसके अंदर यू सेड दैट द मास इज मूविंग विद द यूट्रस, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि बिकॉज इट्स अ 28 वीक साइज मैच, तो एडिनेक्सा कुछ तरीके से यू कैन नॉट अप्रिशिएट, बट इफ यू आर सेइंग दैट लोअर लिमिट इज रीचेबल, तो उसके अंदर फिर हम अभी डीडी डिस्कस करते हैं कि फिर आपका डीडी क्या होगा, ठीक है ना। फिर तो और भी केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। किसी ने मेंशन किया है कि देयर वाज नो कांटेक्ट, देन शी मेंशंस। हाँ, टीबी का तो चलो हम बात करते हैं आगे। मेरी बात सुनो, मुझे पहले ये बताओ कि इन्वेस्टिगेशंस क्या मांगेंगे सब। Ma'am, rest of the investigations, complete blood group with RS factor, complete blood count with date, including the hemoglobin, total leukocyte count, and the आहिस्ता आहिस्ता platelet. बोला, आहिस्ता 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 आहिस्ता। मैं मांग ब्लड लूं ग्रुप बी आपसे या फिर पॉजिटिव है, कंफर्म करूं? मांगो मांगो मैम, मेरे से, हमने केस करना ना पूरा। अच्छा, बी blood पॉजिटिव है, group with और RS, बी पॉजिटिव। complete blood count with date, including the hemoglobin in gram per deciliter, total leukocyte count, and platelet in per cubic millimeter. अच्छा, आराम आराम से बोलो ना, तेजी क्यों कर रही हो। 10 हीमोग्लोबिन है, बाकी नॉर्मल है, टीएलसी प्लेटलेट। Okay. Okay, ma'am. Ma'am, I want to have the random blood sugar of my patient, if available. 92। 92. Ma'am, peripheral blood smear picture of my patient, if available, along with the RBC indices, MCV, MCH, and MCHC. ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सारा कुछ I want. माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है, और फेरेटिन भी लो है। Okay. Ma'am, I want to have the hepatitis B surface antigen, anti-HCV, HIV, sorry, COVID-19 PCR. एचसीवी पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। Ma'am, it's by screening or by PCR, HCV positive. स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग। Uh, Ma'am, any PCR or the ELISA report available? नॉट अवेलेबल। And liver function test for ALT, शाबाश, AST, and नॉर्मल, hemoglobin. नॉर्मल। Um, okay, ma'am, PTA, PTA, PTT report if available with date. नॉट अवेलेबल। Ma'am, abdominopelvic ultrasound for the status of liver, kidneys, bladder, ureter, and the size of the mass, its nature, origin, location, presence of any loculi, ascites, solid areas, or Doppler flow.
along with the uterine size, endometrial thickness, and any adnexal or the myometrial endometrial pathology. चलो, we will discuss. Okay, ma'am. I want to have the urine complete examination for microscopy and biochemistry, in which I need presence of any pus cells, glucose, proteins, or any nitrites. नॉर्मल है. ओके मैम, एब्डोमिनल पेल्विक स्कैन आप बाद में डिस्कस करेंगे. काइंडली आप मुझे यूरेटर का साइज बता सकते हैं, उस पे कितना है? हाइड्रो किसका? यूरेटर, प्रेजेंस ऑफ एनी हाइड्रो यूरेटर तो नहीं है एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे? वो मेंशन्ड ही नहीं है. इट्स नॉट अवेलेबल. Okay, I want to have the renal function test of my patient for serum urea and blood creatinine. नॉट अवेलेबल. मैम बस यही चाहिए मुझे. अच्छा, और कोई? Ma'am, sorry. जी. If the mass is found to be ovarian in origin, I want to have the tumor markers of my patient, including the serum AFP, LDH, and CA-125. नहीं, ये तो बात ना करो कि फिट्स ओवेरियन इन ओरिजिन. आप बताओ आपने मांगने कि नहीं मांगने. अभी अभी एग्जाम का वो वाला हाफ फर्स्ट 30 मिनट्स चल रहे हैं, उसमें आप एग्जामिनर से या मांगो या ना मांगो. Ma'am, I would go for that because it is in my differential. I want क्या to क्या the चाहिए? tumor markers report, AFP, serum AFP, LDH, and CA-125. चलो, वी विल डिस्कस. और And further investigation will depend on the result of the initial investigation. फर्दर क्या मांगना था? Ma'am, if the tumor markers are found to be raised, I would go for the CT report of my patient. अच्छा, ठीक है. कोई और कुछ कमेंट करेगा इन्वेस्टिगेशंस पे? कर लो कमेंट. कोई और मांगनी है? डॉक्टर जी जी डॉक्टर रूबा, मैं इसमें पूछना चाह रही हूँ कि जब एलएफटी इज नॉर्मल है तो व्हाई शुड वी गो फॉर पीटी एपीटीटी? वेरी गुड. ये मैं बताती हूँ. और आप लोग पहले कर लो बात, फिर एक ही दफा मैं सारी इन्वेस्टिगेशंस पे कमेंट कर देती हूँ. और मैडम मैंने अगर ये बात ये इस तरह करके हम मांग सकते हैं ना, मैं आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड में फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड अपॉन द गुड. रिपोर्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड. ऐसे ही करना है. ट्यूमर मार्कर्स हम हर एक में कराने लग जाएंगे तो बेचारे गरीब पेशेंट क्या करेंगे. मैं बताती हूँ ये भी. और मैम चेस्ट एक्सरे भी लेना चाहिए था बिकॉज हिस्ट्री है पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस की, और साथ में ईएसआर अच्छा. भी लेनी चाहिए. अच्छा, और मैडम इसके ना 28 वीक साइज मैस है, तो शुड वी गो फॉर आरएफटीज और नॉट इन दिस केस? वो भी बात कर लेते हैं. और चलो मैं लिवर बताती हूँ. हाँ जी जी लिवर शिरीन. लिवर अल्ट्रासाउंड. ठीक है. और तो मांगा है डॉक्टर सबा ने लीवर अल्ट्रासाउंड तो. अच्छा, चलो मैं बताती हूँ. अच्छा देखो, मेरी बात सुनो. इन्वेस्टिगेशन जो है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जाम का. ये दो चीजें लिख लो. मैं हमेशा कहती हूँ क्लास में मैं ये कराऊंगी, एक अलग क्लास रखेंगे, फिर हम भूल जाते हैं. या कभी ग्रुप में, या मुझे एक अलग से व्हाट्सएप भी भेज दो मुझे याद कराने के लिए. एक डीडी और एक इन्वेस्टिगेशंस की क्लास. यू रियली नीड टू डू दीज टू थिंग्स. आप लोग बहुत अच्छे हो गए हिस्ट्री में. एक्चुअली हिस्ट्री बहुत अच्छी आप लोग कर लेते हो, और आई होप कि इंशाल्लाह मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी कर लोगे. लेकिन जून से पहले पहले ये क्लास होने की जरूरत है जिसमें हम सिर्फ सारी डीडीज और सारी इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करें कि आपने इन्वेस्टिगेशन मांगनी कैसे है. इट्स नॉट जस्ट कि मांगनी कैसे, आपने हर मरीज में अदरवाइज भी कैसे करानी है. देखो, इन्वेस्टिगेशंस के लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर. इन्वेस्टिगेशन बहुत महंगी है, और एक जो आम इंसान क्या कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करा सकता. इवन अगर कोई अफोर्डिंग भी हो तो वो क्यों सारे लैब के रिसोर्सेज और एक्स्ट्रा यूज करे. अब आपने हर मरीज में बहुत फोकस्ड इन्वेस्टिगेशंस मांगनी है. आपके क्लिनिकल अप्रोच का मतलब ही ये है कि आपको पता हो फ्रॉम योर हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशंस के, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के, आपने पेशेंट में क्या इन्वेस्टिगेशंस मांगनी है. इन्वेस्टिगेशन नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर. ठीक है, बेसलाइन तो आपने मांगनी है, लेकिन वही बात कि बेसलाइन में अगर कोई भी एक चीज छोटी मोटी आपको एबनॉर्मल लगी गई है तो फिर आप उसको वहीं पे ही रूल आउट कर दो. जैसे कि सबा ने बहुत अच्छा किया कि शी थॉट के 10 इज लो हीमोग्लोबिन, सो आई शुड रूल आउट कि ये कौन सा टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है. उससे वहीं पे आरबीसी इंडिसेस पेरिफेरल स्मेयर मांग लिया, और मैंने इसको फेरेटिन भी खुद ही बता दिया ताकि बात और लंबी ना आ जाए. इसी तरह जैसे ही मैंने कहा कि हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, शी सेड कि आई वांट लिवर फंक्शन टेस्ट. बट देन बिफोर दैट शी सेड आई वांट एलाइजा. एक चीज उन्होंने मांगी एलाइजा की.
फिर इन्होंने, मैंने कहा नॉट अवेलेबल, एलाइजा हमारे पास था नहीं, फिर मांगा LFTs। यानी कि अगर आपके पास ओपीडी में कोई पेशेंट आया, उसके पास सी पॉजिटिव की रिपोर्ट है, तो क्या आप उसमें पहले एलाइजा अगर नहीं है तो फिर आप उसमें कराओगे LFTs, या फिर एलाइजा मांगने का फायदा क्या है कि अगर LFTs कराना ही है? ठीक है ना, चलो LFTs कराए, LFTs मैंने बता दिया नॉर्मल है। जब मैंने LFTs कह दिया नॉर्मल है, तो फिर PTA PTT कराने की क्या जरूरत है? देखो लिवर का फंक्शन ही जब ठीक है, तो फिर पीटीए पीटीटी खराब होने का कोई चांस बनता नहीं है ना। आपने पीटीए पीटीटी उसमें मांगना है जिसमें LFTs खराब हो गए। हम हैं गायनी के लोग, हमारा काम नहीं है मेडिसिन के चक्करों में पड़ने का। अव्वल तो एलाइजा वगैरह भी मेडिसिन का बंदा कराएगा। वी विल डू ए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। हम अपने साथ फिजिशियन को या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, जो कि देखेगा कि सी पॉजिटिव है तो इसका मैं एलाइजा कराऊं और इसका लिवर का अल्ट्रासाउंड कराऊं या मैं LFTs कराऊं। हमारे लिए LFTs इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ गई है। इसका मतलब यह है कि हमने ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग हर एडमिशन स्टाफ को भी एहतियात प्रोटेक्शन रख देनी है, खुद भी प्रोटेक्शन लेनी है। हाँ, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वी नीड टू नो कि आज शी इज स्क्रीनिंग पॉजिटिव, इसके LFTs कैसे। अगर इसके LFTs ठीक है तो इसका मतलब है PTA PTT भी ठीक है। उससे ज्यादा हमें सर्जरी के लिए या गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जरूरत नहीं है कि हम एलाइजा कराए, या हम उसका अगर LFTs ठीक है PTA PTT कराए। अगर LFTs ठीक है तो लिवर अल्ट्रासाउंड से हमें क्या हासिल हो जाएगा? ये एलाइजा, लिवर अल्ट्रासाउंड और PTA PTT के चक्करों में मेडिसिन वालों ने पढ़ना है। एंड इफ यू थिंक दैट हर LFTs आर नॉट करेक्ट, तो फिर तो वो गायनी का केस ही नहीं रहा। फिर पहले वो लिवर का, शी इज नॉट एन ऑप्स पेशेंट, फिर तो वो पहले अपना लिवर का मसला हल करे ना। हमने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की हुई है, हमने अपने साथ फिजिशियन को इन्वॉल्व किया हुआ है। वो डिसाइड कर लेगा कि इसको पहले सी पॉजिटिव की ट्रीटमेंट की जरूरत है या फिर इसको पहले जिस मसले से आई है वो करें। वो उसका एलाइजा वो चीजों से खुद ही रूल आउट करेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ सी पॉजिटिव स्क्रीनिंग पता चली, वही हमने LFTs मांग दी। अगर LFTs नॉर्मल है, we don't need to know about the liver ultrasound, we don't need to know about ELISA or everything, right? वो हमारा काम नहीं है। वो मेडिसिन वाले को शायद कुछ और भी बहुत सारी चीजें चाहिए हो, वो खुद ही देख लेंगे उन्होंने क्या करना है। ठीक है, तो हमने सिर्फ जहां आपको सी पॉजिटिव दे दिए वहीं पे आप साथ ही LFTs मांग लो। अगर LFTs नॉर्मल है तो वहीं पे आप आगे फिर आगे चलो, फिर और करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो एक तो ये चीज। दूसरा चीज ये कि और आपने क्या मांगा था? हाँ, सो PTA PTT आपने नहीं मांगना। ट्यूमर मार्कर्स, ट्यूमर मार्कर्स देखो इतने महंगे ट्यूमर मार्कर्स, वो भी एक्स्ट्रा नहीं। देखो अगर आपको शक है कि ओवेरियन है तो वो हम इसीलिए तो अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। आपने उस वक्त बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में दूंगी तो पता चल जाएगा कि ओवेरियन है या वो यूट्राइन है। और अगर ओवेरियन होगा तो ट्यूमर मार्कर्स मांगोगे, तो आपको ट्यूमर मार्कर्स बगैर कंफर्म किए आप मांगोगे नहीं। जैसे कि आपने कहा कि ट्यूमर मार्कर्स के बाद मैं फर्दर, फिर आपने अगर मैंने ट्यूमर मार्कर्स नहीं दिए तो फिर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी बोल देते। ठीक है ना, फिर ऑब्वियसली CT वगैरह तो नहीं आपने बोलना ना, और ट्यूमर मार्कर भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना। और स्पेशली इफ ऑन एग्जामिनेशन यू आर दैट श्योर दैट इट्स सो फर्म एंड इट्स मूविंग विद यूट्रस और वो सारी चीजें, तो आप बिल्कुल ही ट्यूमर मार्कर्स नहीं जस्टिफाई कर सकते। हाँ, अगर एक पेशेंट आपके पास सामने बैठी है जो कि देखने में ही है ही मेलिग्नेंसी, सी ओवरी का केस लग रहा है, शी इज हैविंग मैसिव एसाइटीज एंड शी हरसेल्फ इज सेइंग कि मुझे ओवरी का डायग्नोज हुआ है और उसकी सारी हिस्ट्री राइट फ्रॉम द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज गोइंग मोर टुवर्ड्स द ओवेरियन मेलिग्नेंसी। तो उसके अंदर यू कैन डेफिनेटली इवन आस्क, आप उसके अंदर ट्यूमर मार्कर्स भी मांगोगे। अगर एग्जामिनर आपको नहीं भी देता तो आप उसके अंदर CT भी मांग सकते हो। ठीक है ना, यही तो क्लिनिकल अप्रोच में फर्क है कि जब आपने क्लिनिकली देख लिया है फ्रॉम हर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन दैट यस शी इज अ केस ऑफ CA और शी इज अ केस ऑफ मैसिव एसाइटीज व्हिच इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द ओवेरियन मास और ओवेरियन सिस्ट, तो आप उसके अंदर ट्यूमर मार्कर सारे बोलोगे। वो एग्जामिनर अगर आपको कहता है इट्स नॉट अवेलेबल या वी विल डिस्कस लेटर, तो फिर आप उसमें CT भी मांग सकते हो बिकॉज आपने उसे एग्जामिन किया एंड यू नो दैट शी इज अ केस ऑफ CA। लेकिन अगर उसमें आप CT से पहले कह भी दो कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड ऑन द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, तो वो भी जस्टिफाइड होगा। लेकिन उसके अंदर अगर आप क्लिनिकल बेसिस पे भी CT मांग लोगे तो उसमें नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस केस के अंदर जब तक आपके पास अल्ट्रासाउंड नहीं आया तो आप डायरेक्ट वो नहीं मांग सकते, ट्यूमर मार्कर्स नहीं मांग सकते। और बात रहेगी आप जो यूरिटर के पीछे, देखो यूरिटर की क्या क्यों पीछे पड़ गए हो? और फिर अभी मैंने वो भी बताया नहीं तो RFTs मांग लिए। RFTs किस वजह से मांग लिए? एक्स्ट्रा याद रखना, एक भी इन्वेस्टिगेशन एक्स्ट्रा होगी ना बहुत महंगी, खास तौर पे जैसे ट्यूमर मार्कर,
वो उसमें बहुत एग्जामिनर्स अफेंड हो जाते हैं, और अफेंड होने वाली बात भी है कि यू हैव टू बी एब्सोल्युटली फोकस्ड अपने क्लिनिक या ओपीडी में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और एग्जाम में यही तो देख रहे हैं कि आपने एग्जैक्ट टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन मांगनी है। इस तरह नहीं कि अब वो इतनी महंगी इन्वेस्टिगेशन मांग लोगे तो वो माइंड करते हैं कितना क्यों आपने महंगी मांगी। तो आपने इसीलिए, अच्छा अब मैंने कोई कमेंट ही नहीं किया यूरेटर के ऊपर, और तो आपने आरएफटीज मांग लिए। अव्वल तो आप कहो कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड, वो सारा जो आपने एक्सप्लेन किया राइट फ्रॉम द यूट्रस और फिर ओवेरियन मास तक, काफी सारी डिस्क्रिप्शन की कि मुझे ये स्कैन पे चाहिए। मैंने कहा वी विल डिस्कस लेटर। साथ ही आप कहो अल्ट्रासाउंड केयूबी, बिकॉज इज अ ह्यूज मास, आप केयूबी दैट्स इट, बस चुप कर जाओ। अगर एग्जामिनर कहता है इट्स नॉट अवेलेबल तो चुप कर जाओ, नहीं है तो ठीक है, जब होगा मैं देख लूंगी कि यूरेटर पे कोई इफेक्ट आ रहा है तो फिर मैं देख लूंगी आरएफटीज की भी जरूरत है या नहीं, अदरवाइज कोई वो उस तरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टिगेशंस आपने बहुत ज्यादा फोकस्ड करनी है। तो हम एक अलग क्लास करेंगे, बल्कि अगली क्लास से चेक कर लेंगे डीडी और इन्वेस्टिगेशंस पे, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन मैंने नोट किया है पिछली कुछ क्लासों में, बिकॉज आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हो, और आई एम श्योर आप यूट्यूब पे भी क्लासेस देख रहे हो, आप लोग बहुत इंप्रूव कर रहे हो। सभा की हिस्ट्री सीरियसली ऐसी थी कि मतलब इसमें मुझे कोई पॉइंट सच मिला नहीं कि मैं ठीक करूं, एक्सेप्ट कि चलो थोड़ा सा सीक्वेंस ठीक कर दिया, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वरना ये माशाल्लाह वाज वेरी गुड हिस्ट्री। और एग्जामिनेशन भी जिस तरीके से उन्होंने बोला, इट वाज रियली गुड एंड वेरी इंप्रेसिव। बट इन्वेस्टिगेशंस में बहुत ही बुरी तरह मार खा गई। लास्ट क्लास में भी मेरे ऐसे ही हुआ था कि इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट पे आके मार खा जाते हो। तो अब आप लोग को हिस्ट्री एग्जामिनेशन ठीक हो गया है, अब हम डीडी, इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट पे ज्यादा एम्फोसाइज किया करेंगे, ठीक है। आई थिंक यू ऑल एग्री, क्या ख्याल है? यस मैम। मैम चेस्ट एक्सरे और जो फालतू ईएसआर मांगे उसे भी नहीं, कंप्लीट देखो कर अपने दीजिए। पाँव पे खुद ना कुल्हाड़ी मारो। देखो मेरी बात सुनो, टीबी होगा तो होगा। अब आपके ख्याल से ये जो एग्जामिनेशन पे आपको इतना फर्म मोबाइल मास which is moving with uterus and etc, it's not even tender that etc, आपने जो एक टिपिकल मुझे एग्जामिनेशन बताया है, मेरा तो फॉर, चलो डीडी भी डिस्कस करना है इसलिए मैं आपको भी हिंट नहीं देती। तो इसके अंदर टीबी का मैथ्स तो ऐसा नहीं होगा अपने पास। फिर आप टीबी के लिए चेस्ट एक्सरे क्यों मांग रहे हो? फिर आप टीबी के लिए मॉन्ट्रोस टेस्ट मांगो या आईजीआरए टेस्ट मांगो ना। फिर आप टीबी के लिए वो क्यों मांग रहे हो, इस किस्म का चेस्ट एक्सरे और ईएसआर? दीज आर नॉट डायग्नोस्टिक और वेरी गुड इन्वेस्टिगेशंस फॉर ट्यूबरकुलोसिस। आप देखो उसे इस वक्त एक्टिव टीबी तो नहीं लग रही है। अगर आपको लगता है कि बिकॉज शी हैज हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, वो भी कितने साल पहले आपने मुझे बताया? मैंने एक्टिव टीबी के ऊपर नहीं मांगी, मैंने सिर्फ इसलिए मांगी कि उसको प्रीवियस हिस्ट्री थी पेल्विक टीबी की, मैंने सिर्फ इसलिए मांगी थी। चलो फिर एक्टिव तो जस्टिफाई कुछ कर नहीं। भी सकते हो, दूसरा चेस्ट एक्सरे, एक्सरे कोई इतना महंगा इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हाउ एवर अगर ये भी आप एनेस्थीसिया वालों के लिए रहने दो तो वो बेहतर है, बिकॉज अगर कुछ एक्टिव इधर उधर हुआ भी तो एनेस्थीसिया वाले विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स ना। तो इसलिए इतना एक्स्ट्रा और ईएसआर और चेस्ट एक्सरे के चक्करों में पड़ने की वैसे जरूरत नहीं है इस तरह के पेशेंट में। अपने अपना डॉक्टर रुबा, फोकस मैंने पूरा एक करते हैं। डॉक्टर रुबा एक बात ऐड करनी है। इस दफा ना एग्जामिनर्स ने कोविड पीसीआर के लिए ना उन्होंने चेस्ट एक्सरे भी कहा है कि आप लोग फिटनेस करने से पहले या सर्जरी आपने हाँ, करनी है तो चेस्ट एक्सरे ये जरूर बहुत कराएं इंपॉर्टेंट, इसको। ये अच्छा पॉइंट है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप चेस्ट एक्सरे जो है कोविड को जस्टिफाई करने के लिए करा सकते हो, लेकिन पहले ये भी तो करो ना कि फिर ये तब करो कि जब आप सर्जरी द माइंड में प्लान कर चुके हो और आप इमिडिएटली करने लगे हो विद इन नेक्स्ट 3 डेज। ये ना हो कि आप सर्जरी प्लान कर रहे हो कोई 2 हफ्तों के बाद और आप उसका एक्सरे और पीसीआर करा रहे हो। तो अभी तो हमने ये भी नहीं फैसला किया ना कि मरीज एडमिट भी हुआ है या नहीं। ये पीसीआर और कोविड तो तब कराना है ना, एक्सरे और पी कोविड, जब हम उसे एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, मैम एक और ठीक है क्वेश्चन ना। मैंने पूछना था, तो जो एनेस्थीसिया फिटनेस की इन्वेस्टिगेशंस हैं, एलएफटीज आरएफटीज और चेस्ट वो एक्सरे, हमने नहीं मांगनी। आई डोंट लाइक इट एक्चुअली, ये ना बहुत सारे मांगो। पेशेंट्स में कोई कोमोर्बिडिटी नहीं होती, उनमें ना आरएफटीज बनते, ना चेस्ट एक्सरे बनता है, ना ईसीजी बनती है, तो फिर हाँ, हम तो मांगे ना क्यों? कराओ ना, आप किसी में भी ना कराओ। वो एनेस्थीसिया वालों को जब हम कह रहे हैं कि आई विल गेट फिटनेस फ्रॉम एनेस्थीसिया, वो खुद ही अपनी मर्जी की इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। इवन मैम वो कार्डियक की आप पेशेंट 60+ एज की, उनमें भी एक मैंने पेशेंट देखी जिसमें कोई कोमोर्बिडिटी नहीं थी, तो उसमें भी हम नहीं मांगेंगे ना, उसमें भी फिर नहीं एनेस्थीसिया फिटनेस। मांगेंगे। और ये कई जगहों पे सारी कराई जाती है और कई जगहों पे कराई ही नहीं जाती है एक्चुअली। कई जगहों पे सिर्फ सीबीसी और आपका ये होता है हेपेटाइटिस और कोविड और एचआईवी का प्रोफाइल, उसके अलावा और कोई कुछ होता भी नहीं है कई जगहों पे, ठीक है ना। तो आप वो नहीं मांगोगे।
अच्छा, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ये वाली बात है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन? चलो मैं देखती हूँ चैट पे, शायद लिखा है किसी ने। हाँ बिल्कुल, वही पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे डिपेंड करेंगे ना आपके सारी रिपोर्ट्स अगली। ठीक है, अच्छा चलो अब डीडी बताओ भाई, सबा। Yes, my provisional diagnosis is fibroid uterus because my patient is in reproductive age group. She is presented with mass abdomen and the lower abdominal pain. On examination, I have found a 28-week size mass, smooth contour, firm in consistency, regular margins, mobile. However, the lower limit was reachable, but it can be any subserosal fibroid. And on the bimanual examination, a mass is felt. 28-week size mass not felt separately from the uterus moves with the uterus, and the adnexa and there is no adnexal fullness or no mass felt in the adnexa. So my provisional is fibroid uterus, but as the lower limit was reachable and the patient is presented with a lower abdominal pain, it can be some ovarian mass. And because some ovarian masses can be fun in consistency like thecoma or the fibroma, which are in benign in nature, it is in my differential and will be ruled out on the ultrasonography report. ठीक है, और भी एक आधा बोलो। I have pulled out the pregnancy initially because patient is having no amenorrheic spells, and after that my third differential is any GI mass. इसकी But सॉरी एलएमपी क्या बोली थी आपने? उस वक्त कट गई थी 10th आवाज। 10th March, ठीक है। and my differentials also include some GI mass, but my patient is not having any GI related complaints and not having any parectal bleeding or any pain in the or any painful defecation on and also some urine related some bladder mass can also be there, but she is not having any frequency or the urgency or the retention of urine. ठीक है, ठीक है। आई थिंक यू मेड गुड लिस्ट ऑफ डीडीज। अच्छा था, किसी ने कुछ ऐड करना है? डॉक्टर रूबा, जिसमें अगर लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल, इन्होंने कहा है हाँ, कि लोअर लिमिट इसकी रीचेबल नहीं थी, तो हाउ कुड वी पुट प्रोविजनल ऑफ फाइब्रॉइड ऑन टॉप? इन्होंने कहा है लोअर लिमिट इज रीचेबल, आप यही पूछना चाह रहे हो है ना? क्योंकि जी नॉट हाँ जी, रीचेबल लीवर। के अंदर हाँ तो होगा नहीं ही रीचेबल, फाइब्रोइड। जी 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 जी। देखो बिल्कुल, लोअर इफ लोअर लिमिट इज रीचेबल तो फिर बिल्कुल एक पेडंकुलेटेड सबसिरोजल फाइब्रोइड जो है ना वो ऐसे ही प्रेजेंट करता है। और इसीलिए इन्होंने जो फर्स्ट डीडी बोला है, इन्होंने सबसे रोजर पेडंकुलेटेड फाइब्रोइड ही बोला है। क्योंकि अगर तो इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड होगा तो वो उसमें लोअर लिमिट रीचेबल नहीं होती, और वो कंटिन्यूएशन में होता है। और मेजॉरिटी इंट्राम्यूरल ही होता है। इट्स अ बिट रेयर थिंग टू फाइंड अ सबसिरोजल ह्यूज फाइब्रोइड, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी। स्पेशली इन्होंने इसलिए इसको कोरिलेट किया क्योंकि बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के ऊपर शी सेड दैट इट्स मूविंग विद द यूट्रस, और जिस तरह की डिस्क्रिप्शन थी वो सारी थी फाइब्रोइड की डिस्क्रिप्शन ना, फॉर मोबाइल रेगुलर और वो सारा कुछ। तो इस वजह से इन्होंने फर्स्ट डीडी में रखा सबसिरोजल फाइब्रोइड, यानी कि अगर पेडंकुलेटेड फाइब्रोइड हो तो उसकी लोअर लिमिट बिल्कुल रीचेबल हो सकती है। ठीक है। लेकिन मैम अगर सबसिरोजल भी है तो इसके एग्जामिनेशन पे बाय मैनुअल पे हमें वो इस तरह से मिलेगा, वो बिल्कुल बाय मैनुअल इंट्राम्यूरल वाली पिक्चर थी, बाय मैनुअल पे यूट्रस बिल्कुल अटैच था मैच से और वो मूव कर रहा था हाँ, मुझे। तो जो पेडंकुलेटेड होता है वो भी बिल्कुल कोई अलग नहीं फील होता, लेकिन उसके अंदर लोअर लिमिट रीचेबल होती है। जो सबसिरोजल फाइब्रोइड होता है ना, इमेजिन करो यूट्रस के साथ एक सबसिरोजल फाइब्रोइड पड़ा हुआ है, और आप जब उसे एग्जामिन करोगे तो लोअर लिमिट रीचेबल होगी, बट इट विल बी मूविंग विद द यूट्रस। लेकिन जो इंट्राम्यूरल होता है वो बिल्कुल उसके अंदर लोअर लिमिट ढूंढना मुश्किल, इट्स नॉट पॉसिबल इन इंट्राम्यूरल। सबसिरोजल के अंदर इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन फाइंड द लोअर लिमिट। और मैम अगर एग्जामिनर्स हमसे कहते हैं कि व्हाई द लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल इन द ओवेरियन मैसेज, तो हम उसमें उन्हें क्या देंगे कि वो नहीं, इन ओवेरियन masses, majority of the ovarian masses में lower limit is reachable. Ovarian masses are not in continuation with the uterus. If you don't find a lower limit in an ovarian mass, for example, if on ultrasound there comes out to be an ovarian mass, but on examination your lower limit was not reachable, then it means that the ovarian mass has adhered to the uterus actually. ओके मैम। हाँ जी जी, ये थोड़ा डॉक्टर रूबा, एक बात एक और और मैंने भी बात पूछनी मैंने थी। आपको बतानी है। इन्होंने कहा था कि एडिनेक्सा में अनरिमार्केबल है ना, हाउ 28 वीक साइज मैस है, तो हाउ इट कैन बी हाँ, पॉसिबल कि it's एडिनेक्सा not नॉट? possible.
If it's a huge mass, it's not really possible that you can find, you can palpate it in Exa. तो आप कह सकते हो because of the mass, both at in Exa were full because the mass was reaching that in Exa also, obviously. एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है because as you said that the lower limit was reachable. तो जब आपने एग्जामिन किया mass को, when you say that the lower limit was reachable, you have to say a bit of approximately dimensions, that it was 28 into 25 centimeters approximately, या maybe huge mass, watermelon size कह लो, या एक बड़ा mass किसी approximation of exact size has to be there. उसकी वजह ये है कि जो आप 28 week size कह रहे हो ये भी ठीक है, but 28 weeks का मतलब ये लगता है कि the lower limit was not reachable. When you say that there is a 28 week size, तो ऐसा लगता है that the lower limit was not reachable. But when you're saying that the lower limit was reachable, then you should say that approximately 28 into 25 centimeter mass occupying this quadrant of the abdomen, or which is more on the right side or on the left side, या more in the center. फिर आप इस तरीके से करके बात करोगे, because 28 weeks का मतलब ही यूट्रस है. हम तो यूट्रस के लिए वीक्स यूज करते हैं ना, तो मैसेज के लिए आपने अप्रोक्सीमेशन ऑफ द साइजेस देना है. कभी भी हम एग्जैक्ट साइज इसलिए नहीं क्यों नहीं दे सकते एग्जैक्ट साइज. मैं क्यों कह रही हूँ कि अप्रोक्सीमेटली दिस मच साइज बोल रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली. एग्जैक्ट साइज क्यों नहीं पता लगेगा हमें. मैम द mass arise from the pelvis, तो इसलिए जो है उसका एग्जैक्ट साइज है क्या. मैम फाइब्रॉइड अराइज फ्रॉम द पेल्विस, तो मुश्किल हो जाएगा. मुझे ये कंफ्यूजन कि मैंने आपसे पूछा है. कंफ्यूजन बढ़िया आप लोगों को मैथ्स के एग्जामिनेशन में. आई कैन सी दैट आप लोग क्लियर नहीं हो. देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एग्जामिनेशन जो है ना एक दफा फिर बताती हूँ, जैसे मैंने अपनी एक दो और क्लासेस में भी एग्जामिनेशन बताया हुआ है इस तरीके से मैथ्स का. मेरे आई होप कि अगर डॉक्टर रूबा लेक्चर्स हैं जरूर देखना. एक हाँ बात, मैं आपको बताती हूँ. डॉक्टर रूबा काइंडली आप ना ये भी कमेंट कीजिएगा कि हाउ वी मेजर लोअर लिमिट इज रीचेबल और नॉट रीचेबल. आई थिंक हम इसी चीज में ठीक ही नहीं हम करते हैं कि रीचेबल है या नहीं रीचेबल है, वो कैसे ठीक है, मतलब कि हम देखो मेरी बात सुनो. ये भी बता दें. एग्जामिनेशन ऑब्वियसली एज आई ऑलवेज से इन माय क्लासेस दैट एग्जामिनेशन उसी पैटर्न पे होगा जैसे हम एमबीबीएस फाइनल ईयर में किया करते थे. इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, राइट. इंस्पेक्शन के अंदर आज भी बड़ा अच्छा इंस्पेक्शन बोला है सबा ने, उसी तरह सारा आपने इंस्पेक्शन तो बोल देना है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में. व्हेन यू आर पैल्पेटिंग फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ अ मास द एब्डोमेन, तो आपने उसके अंदर क्या करना है. आपने पहले तो जब साइज साइज पे कमेंट किया, साइट पे कमेंट कर देना कि इन द कौन कौन से क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन को वो कवर कर रहे हैं. उसके बाद आपने उसके साइज को कमेंट करना है. यू शुड बी वेरी क्लियर कि किस मैस का साइज एग्जैक्ट बोला जा सकता है और किस में आपने अप्रोक्सीमेशन बोलनी है. जैसे कि मैं कह रही हूँ कि इस मैस के अंदर आपने एक अप्रोक्सीमेशन हम बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मे बी एन ऑरेंज साइज, मे बी दिस साइज, या मे बी आप अगर साइज को पूरा बोलना चाह रहे हो तो बोल दो इतने इंटू इतने सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली. इसलिए क्योंकि देखो बॉडी के अंदर एग्जैक्ट साइज तब मेजर किया जाता है जब हम किसी बोनी डिमार्केशन से वो टेप रख के मेजर कर रहे हो. जैसे कि हम कहते हैं कि मे बी प्यूबिक सिम्फिसिस से, जैसे कि 28 वीक साइज सबा ने बोला, तो 28 वीक साइज का मतलब ये था कि सबा ने प्यूबिक सिम्फिसिस से मेजर किया है उसके मैक्सिमम जहां तक उसे लेंथ मिली उसकी वहां तक टेप रख के उसने मेजर किया, इसलिए बोल दिया 28 वीक साइज. हाउएवर अगर उसकी बोल दिया लोअर लिमिट रीचेबल, इसका मतलब ये है कि देयर इज नो बोनी डिमार्केशन लेफ्ट नाउ. जैसे हम कहते हैं मीडियल मेलियोलस से इतने सेंटीमीटर अबव हम हो तो ये होगा, मीडियल एपिकोंडाइल से इतने सेंटीमीटर अबव है तो ये है. देयर हैज टू बी, ये एक रूल है कि देयर हैज टू बी अ बोनी डिमार्केशन फॉर मेंशनिंग साइज ऑफ सम मैस. तो मैस के साइज के लिए आपने बोनी डिमार्केशन की का जरूर ध्यान रखना है. तो लोअर लिमिट रीचेबल अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उस मैस को आप किसी बोनी डिमार्केशन से नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो कि उसका लोअर लिमिट आपको मिल गए. फिर तो वो लोअर लिमिट से आप उसको मेजर करोगे ना. और जब जब हम ऐसे सिर्फ एक अगर मैस पड़ा हुआ है जो किसी बोनी डिमार्केशन से नहीं कोरिलेट कर रहा, तो फिर हम उसकी हमेशा अप्रोक्सीमेशन बोलेंगे, क्योंकि
क्योंकि अगर वो इतना मोबाइल है तो आप उसके लोअर लिमिट पे टेप रखोगे तो वो ऐसे मोबाइल होके ऊपर चला जाएगा, अगली टेप कहीं और रखोगे तो वो फिर एक अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ साइज होगा, वो एक एब्सोल्यूट साइज नहीं होगा। हाउएवर इफ इट्स अ यूट्राइन मास, जैसे कि हमने कह दिया कि लोअर लिमिट नॉट रीचेबल, इसका मतलब ये है कि वो नीचे पेल्विस के अंदर कंटिन्यू किया हुआ है यूट्रस के साथ, तो फिर हम उसको प्यूबिक सिम्फिसिस से मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि इट्स 28 वीक साइज मास, which means that you have actually measured it from the pubic symphysis, और वो आप एग्जाम में टेप रख के मेजर भी करोगे। However, जब आपका मैस लोअर लिमिट रीचेबल है, इसका मतलब ये है कि वो बोन्स या किसी चीज से अलग एक मैस पड़ा हुआ है, तो आप उसमें अप्रोक्सीमेशन बोलोगे कि 28 into 25 सेंटीमीटर मैस, विच बाकी सारी बहुत अच्छी सबा ने बोला था, वही साइड साइज, सरफेस शेप, बॉर्डर, टेंडरनेस, ओवरलाइंग स्किन, वो सारी चीजें मोबाइल है कि नहीं, वो उसी तरह। लेकिन साइज के लिए यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपने साइज किस तरीके से मेंशन करना है। उसके बाद ये कि एनी साइंस ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन, मैंने पहले भी आप लोगों को क्लियर किया था कि जब आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन गायनी के अंदर करोगे तो उसके अंदर परकशन एक दफा जरूर करके देख लो, बेशक आपको उसके अंदर फ्लूइड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या फिर उसके अंदर मैस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपने सिर्फ परकशन नोट लेकर जाना है। आई होप अगर आप को बदन में नजर आ रही हूँ, हाँ आ रही हूँ। अच्छा, परकशन नोट आपने लेके जाना है अम्लाइकस तक, एपिगैस्ट्रियम से अम्लाइकस तक लेके जाना है और फिर फ्लैंक्स तक लेके आना है। अगर तो आपका नोट चेंज नहीं हो रहा है, यानी रेजोनेंट नोट डल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है नो साइंस ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन, फिर करवट भी दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है जब साइन ऑफ फ्लूइड ही नहीं है तो फिर शिफ्टिंग डलनेस तो नहीं होगी ना। तो आपने परकशन के अंदर हर पेशेंट के एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ये करके छोड़ देना है, करवट नहीं दिलानी है उसको, अगर उसका फ्लूइड मिला है तो करवट दिलाएंगे, और अगर बहुत मैसिव किस्म की साइटिस है सिर्फ तब आप उसकी फ्लूइड थ्रिल चेक करोगे। और ऑस्कल्टेशन ऑफ कोर्स हमारे गायनी में तो ऑस्कल्टेशन का उस तरह से रोल नहीं है। सो एग्जामिनेशन के अंदर साइज का जो है वो इम्पोर्टेंट है, और हमारे केस के अंदर it's important to know if the lower limit is reachable or not, so that we can at least differentiate if it's an intestinal mass or a uterine mass. ठीक है? यूट्राइन बाय मैनुअल पे कितने साइज के मैच के ऊपर हम एडनेक्सा पे सही तरह कमेंट नहीं कर सकते मैम। वैसे मुझे तो इसके एडनेक्सा 28 पे भी क्लियर लगे थे, मुझे फील हुआ। There is no particular size mentioned anywhere कि इतने के बाद के मैं कह दूं कि 14 वीक्स के बाद से नहीं होगा या 16 वीक्स के। अब अगर ये सब सिर्फ फाइब्रॉइड एंड इट्स मोर ऑन द राइट साइड, तो हो सकता है आपको लेफ्ट एडिनेक्सा फ्री पे आपको मिल जाए क्लियर, ठीक है ना? तो यस यू विल चेक फॉर द एडिनेक्सा, बट इफ इट्स अ ह्यूज मास तो आप कह सकते हो कि मास इज फिलिंग अप द एडिनेक्सा आल्सो, ठीक है? तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। इस बात की जस्टिफिकेशन क्या देंगे कि लोअर लिमिट जो है ओवेरियन मैस में रीचेबल नहीं होती, इस बात की कैसे जस्टिफाई करेंगे? ओवेरियन मास में लोअर लिमिट रीचेबल होती है, नंबर 1। अगर लोअर लिमिट रीचेबल नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो है। सॉरी मैम, होती है को कैसे जस्टिफाई करेंगे, मैंने उल्टा कह दिया है। क्या होती है कह रहे हो? मैम, अगर हमने एग्जामिनर को कहेंगे ना कि लोअर लिमिट रीचेबल होती है एडिनेक्सल मैसेज में, उसकी वजह ये है क्योंकि वो यूट्रस के साथ अटैच नहीं है, इट्स नॉट अराइजिंग फ्रॉम द यूट्रस, तो वो एक मोबाइल मैस होता है और आपको वो आपको पूरा एडिनेक्सा के अंदर फ्रीली मिलता है। लोअर लिमिट उसकी, लोअर लिमिट अपर लिमिट सारी फील हो सकती है, इसीलिए तो कह रही हूँ उसके अंदर आप एक अप्रोक्सीमेशन ऑफ साइज बोलोगे मैस की, उसके अंदर हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते बिकॉज लोअर लिमिट रीचेबल है और आप उसको बोनी डिमार्केशन से मेजर नहीं कर सकते। अगर वो सेंट्रल है एंड इट्स राइजिंग फ्रॉम द यूट्रस तो फिर आप उसको बोनी डिमार्केशन से मेजर कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट साइज बोल सकते हो। और अगर ओवेरियन मैस के अंदर लोअर लिमिट रीचेबल ना हो तो जैसे कि आपको लगा कि लोअर लिमिट रीचेबल नहीं है लेकिन स्कैन पे एडिनेक्सल मैस आ गया है, तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बिकॉज इंट्राऑपरेटिवली देयर आर एडिशंस प्रेजेंट। एडिशंस की वजह से ओवेरियन मैस यूट्रस के साथ अटैच हो सकता है और आपको लोअर लिमिट रीचेबल नहीं भी मिल सकती। So it can be anyways. However, in majority of the ovarian masses, lower limit is reachable. यस मैम, थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन भी है मैम, वो ये कि इस तरह होता है ना जैसे कभी फॉर्म इनकंसिस्टेंसी हमें मैस मिलते हैं वो फाइब्रॉइड ही होते हैं, सिस्टिक जो होते हैं वो ज्यादातर ओवेरियन होते हैं। मैम फॉर्म जो है वो फाइब्रोमा थिकोमा भी हो सकता है ओवेरियन ओरिजिन हो में? सकता है। देखो जो फॉर्म है ना उसके ऊपर आप उसके टेक्सचर के ऊपर या कंसिस्टेंसी के ऊपर फाइनल करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि नो डाउट इट इज लेस लाइकली दैट द ओवेरियन मास इज दैट सॉलिड बट एट टाइम्स इट इज सॉलिड। सो आप उसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि बिकॉज इट इज फॉर्म दैट्स व्हाई इट्स फाइब्रोइड। अब ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। आप बिल्कुल फाइब्रोमा भी आपको फॉर्म मिल सकता है
तो लेकिन नो डाउट जो फाइब्रॉइड की कंसिस्टेंसी है उसकी तो बात ही और है, बट अगेन आप कंसिस्टेंसी के ऊपर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये क्योंकि ये फर्म है इसलिए ये है, तो आप वो नहीं कह सकते। मैम मिक्स कंसिस्टेंसी कह सकते हैं, कभी कभी हमें सिस्टिक और सॉलिड के बीच की चीज मिलती है, कहीं नहीं से एक ही सिस्टिक बोल लो, नहीं यार सिस्टिक तो बहुत ही फिर आपको पता चलता है ना, अगर वो सिस्टिक नहीं है तो फिर फॉर्म ही बोलो, मिक्स्ड कंसिस्टेंसी कहना बड़ा अजीब सी बात है। ओके मैम। ठीक है, एक सेकंड मुझे देना बस। अच्छा ठीक है, हाँ जी। और मैडम काइंडली अब अगली क्लास में ये लोअर लिमिट रीचेबल वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि मैडम मैंने भी ओपीडी में एक दो पेशेंट देखे हैं जिनके इतने ह्यूज पेल्विक मैसेज होते हैं और उनका लगता है ऐसे ही जब आप पीए करते हो लोअर लिमिट रीचेबल है, लेकिन जब आप बायोमैनुअल करते हो और अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स होती हैं तो वो सब सिरोजल फाइब्रॉइड नहीं होता है मैम, शायद वो फिर देखो यूट्राइन बॉडी में और ठीक है, फंडस में होता है सारा जो फाइब्रॉइड होता है। लेकिन जब आप इतने हाँ लगाई 28 वीक्स है अब आपका मतलब एम्ब्लाइकस जो भी मैथ है उसमें ऐसी फीलिंग हम लोगों को आती है, मुझे भी बहुत से पेशेंट की आई इतने ह्यूज मैसेज में कि लोअर हाँ। लिमिट रीचेबल है। ऑल्दो वो सेंट्रल अच्छा था, देखो, फर्म था, मतलब एक वैसे वेन में जा रहा था कि फाइब्रॉइड है, लेकिन वो लोअर लिमिट रीचेबल वाला मैंने वो कॉन्सेप्ट जो है ना, ये इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं। मैम यहाँ पे मुझे देखो ना जो एक लोअर क्वेश्चन। लिमिट रीचेबल है वो तो अब देखो मेरी बात सुनो, जो एग्जामिनेशन के अंदर लोअर लिमिट तो बड़ी क्लियरली मिलती है, लाइक लोअर लिमिट रीचेबल का मतलब ये होता है कि जब आप लोअर लिमिट पे हाथ रखते हो तो वो मैस पूरा का पूरा थोड़ा ऊपर भी मूव करता है, और फिर जब आप उसके अपर लिमिट पे हाथ रखते हो तो आप अपने दोनों हाथों के बीच में उसे मूव करके फील कर रहे हो, यस लोअर मैम, लिमिट रीचेबल का ये मतलब है। ये मैम ऐसा ठीक है ही ना, था, मेरी स्लिप हो गई थी हाँ। एब्डोमिनल में। तो लेकिन अगर आप जैसे भी डॉक्टर निरम कह रही हैं कि लोअर लिमिट मिल गई एब्डोमेन पे, बट देन तो फिर बाय मैनुअल के अंदर आपको क्लियरली नजर पता चलता है कि देयर इज अ मैस जो कि आपको अलग से उसके लोअर अपर लिमिट का पता लग रहा है, और साथ ही यूट्रस भी है। एंड फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ सबसेरोजल फाइब्रॉइड तो दैट मैस विल बी मूविंग विद द यूट्रस, और फिर वो एडिनेक्सा के साथ उसका ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन जो लोअर लिमिट रीचेबल नहीं होती उसके अंदर यू नेवर to put your hand into the lower limit and hold the mass from the upper limit as well। जो रीचेबल नहीं होती उसमें आप दोनों हाथों से उस मैस को पकड़ नहीं सकते, लेकिन जो रीचेबल होती हैं उसमें तो आप दोनों हाथों से उसको पकड़ पकड़ सकते हो। देयर इज अ डिफरेंस ऑलवेज। ठीक है ना। डॉक्टर रूबा मैंने एक पेशेंट देखा था। वो उसकी ना हाँ। लोअर लिमिट रीचेबल थी, और बाय मैनुअल जब मैंने किया तो उसका ना वो बिल्कुल फर्म इनकंसिस्टेंसी था, 20 वीक साइज मैच था, और जैसे मैंने उसका बाय मैनुअल किया यूट्रस से अलग नहीं मुझे फील हुआ। और उन्होंने इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड दिया था, और मैंने बहुत अच्छा ऊपर मतलब कि डोमिनली ना उसको दोनों हाथों के दरमियान मूव भी किया देखो और पुश भी मैं एक किया। बात बताती हूँ, गायनी के अंदर अ, आप लोग भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे इंट्रा ऑपरेटिवली। देखो जो अल्ट्रासाउंड है वो भी हमारा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि उन्होंने इंट्राम्यूरल दे दिया, सबसिरोजल ने दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गायनी के अंदर जब पेशेंट को आप सर्जरी करते हो तो इंट्रा ऑपरेटिवली देयर कैन बी मल्टीपल फाइब्रॉइड्स आल्सो, इंट्राम्यूरल भी होगा और सबसिरोजल भी हो सकता है। इवन एक इंसिडेंटली ओवेरियन सिस्ट भी मिल जाती है। एंडोमेट्रियोसिस विद फाइब्रॉइड बहुत कॉमन चीज है। सो द थिंग इज कि आप हमेशा कैसा आपका, और अगेन अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड पे गलत भी हो जाती है, जैसे कि आपने कह दिया कि लोअर लिमिट रीचेबल है लेकिन आपको बाय मैनुअल पे नहीं भी लगा या आपको अल्ट्रासाउंड पे नहीं उन्होंने दिया, तो ऑब्वियसली देखो हमारी जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं दे कैन नेवर बी 100%, इसीलिए तो अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। बट देन अगेन अल्ट्रासाउंड कैन ऑल्सो नेवर बी 100%, ये भी हो सकता है कि आपकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग और इंट्रा फाइंडिंग एक निकल आए और अल्ट्रासाउंड की थोड़ी सी ऊपर नीचे आते हैं। सो दीज थिंग्स कैन ऑलवेज हैपन। हम कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रहे, इट्स ऑल योर क्लिनिकल असेसमेंट दैट मैटर्स मोर। अगर आपको लोअर लिमिट मिल भी गई है और लेटर ऑन आप जैसे अभी सबा ने बड़ा अच्छा इस चीज को जस्टिफाई किया है कि उसे लोअर लिमिट भी मिल गई, बट देन ऑन बाय मैनुअल इट वाज मूविंग विद द यूट्रस, सो इसने अपने डीडी के अंदर इस वजह से सबसे पहले सब सिरोजन दे दिया। हमें वी शुड नॉट केयर व्हाट इज इन अल्ट्रासाउंड, एग्जाम के अंदर आपको अल्ट्रासाउंड मैटर नहीं कर रहा, अल्ट्रासाउंड तो मिलेगा ही एंड पे जाके। तो आपने आपकी क्लिनिकल असेसमेंट ही है जो मैटर कर रही है। अगर आपको लो लिमिट मिल गया
और आपको लग रहा है कि इट्स फाइब्रॉइड, मे बी सबसिरोजल, और हिस्ट्री इज गोइंग मोर टुवर्ड्स फाइब्रॉइड इज सबसिरोजल, if अगर लोअर लिमिट मिल गया बट द हिस्ट्री इज गोइंग मोर टुवर्ड्स ओवेरियन मास, देन इट्स एन ओवेरियन मास। मैम ऐसा हो सकता है कि पोस्टीरियर वॉल इंट्राम्यूरल फाइब्राइड हो और हमें लोअर लिमिट मिल रही है? पोस्टीरियर वॉल इंट्राम्यूरल हो, नहीं पोस्टीरियर वॉल इंट्राम्यूरल में लोअर लिमिट कैसे मिलेगी? अच्छा, उसमें नहीं मिलेगी? नहीं, इंट्राम्यूरल में तो मुश्किल में नहीं मिल सकती ना लोअर लिमिट, वो तो यूट्रस के साथ ही मिलेगा। जल्दी से इसकी ना 10 मिनट में मैनेजमेंट भी कर लेते हैं ताकि मैम केस हमारा पूरा हो जाए। सब ठीक थे? जी, डिफरेंशियल्स ठीक थे? आपके डिफरेंशियल्स ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। मैम मैनेजमेंट बता दो। before management, I want to have the pelvic ultrasound report for Good. the site size, location of the mass, and the presence of ascites, ठीक है, solid areas, circularity, and uterine ठीक size. है, वो And आप बताओ, जो था वही बता दो जो आपके पेशेंट में था। मैम उसमें तो posterior wall fibroid था। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके फाइन। कितना बड़ा था? मैम ये तो मुझे नहीं याद, लेकिन इसी तरह था जिस तरह एग्जामिनेशन पे था, इतना बड़ा ही था। अच्छा मैंने ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट हुई थी उसको देख के, क्योंकि मैंने जब बायोमेनुअल किया था मुझे फाइब्रॉइड लगा था, मैंने जब पीए किया था मुझे ओवेरियन मैस लगा था, फिर जब ठीक मैंने है, ठीक। उसके पर भी फाइब्रॉइड था। नहीं बट आपका सब कुछ कोरिलेट कर रहा था। अच्छा ठीक है, आगे अल्ट्रासाउंड मैंने बता दिया। और मैम और तो बस कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, बस फिर अब शुरू करूँ मैनेजमेंट? हाँ, कर रहा मैनेज। Ma'am, I will counsel my patient regarding a diagnosis that she is having fibroid uterus, which is the cause of her lower abdominal pain and the abdominal mass. Although she is not having any heavy menstrual bleeding complaint or any her quality of life is not been compromised. But as she has developed the complaint of lower abdominal pain due to DAS mass, and also she is being suffered from the pelvic tuberculosis previously, from which she is not able to lie straight on the couch, and so that she needs treatment. She has completed her family already, and I have discussed with her the treatment options in the form of conservative and the surgical management, and she opted for the surgical management as she is para 4 and completed her family having no any fertility wishes. So after discussion her with the pros and the cons of the total abdominal hysterectomy, I will proceed, and I will my aim of management would be to optimize her basic health profile, her hemoglobin, and the I will go for the ultrasound KUB for the status of the ureter and the bladder and the kidneys, and then I will get her anesthesia fitness done. We'll take the informed consent, blood arrange, and we'll take her to the we'll get anesthesia fitness. Then we'll shift her to the operation theater on time. After the evaluation and the anesthesia induction and prophylactic antibiotic cover, I will reassure my findings. And after the aseptic technique, I will open the abdomen by the by the lower segment transverse incision. And the thorough inspection of the abdominal and the peritoneal cavity, I will approach the mass, will look for its site, its nature, its attachment to the uterus, its consistency, and the adnexal and the adnexal status, the status of the both of the ovaries, the tubes, and any coexistent pathologies. And then I will do the total abdominal hysterectomy by 3-clamp method, and will secure the hemostasis and send the specimen for the histopathology. We'll close the abdomen, we'll shift the patient to the post-operative ward, we'll monitor her vitals. बिल्कुल ठीक है, गुड सबा, ठीक है, गुड। अच्छा, किसी और ने कोई कमेंट करना, पहले बता दें। मैंने एंडोमेट्रियल बायोप्सी नहीं की। शी इज 35 राइट? यस मैम, मुझे करनी थी एक्चुअली, मैंने अचानक से केस लिया है ना, मुझे इसलिए याद नहीं रही, सॉरी। मैं बायोप्सी चलो, करनी थी इससे पहले। पैप्समेयर और बायोप्सी की बात अभी करते हैं। और कोई बात? डॉक्टर रूबा, इसकी पेन पे भी कमेंट करें। ये पेन के साथ प्रेजेंट किया है ना मैस एब्डोमेन। बेसिकली हम ओवेरियन की तरफ सोच रहे हैं, बट इट्स अ फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड में पेन इसकी डीजनरेशन की वजह से स्टार्ट हुई है या आप बताओ। प्रेशर सिम्टम्स? मैम पॉसिबिलिटी है इतने अब जो इसको पेन अभी स्टार्ट हुई है तो इसको डीजनरेशन हुई होगी। बिल्कुल। देखो भाई, देखो जो मैस पेल्विक मैस के साथ पेशेंट है उसके अंदर पेन क्यों होती है? पेन का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड मैस ना, राइट? बल्कि अगर डीडी के अंदर सभा यूं बोल देती कि कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड, तो वो और भी अच्छा हो जाता, हो जाना। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है? या तो डीजनरेशन है, या इन्फेक्शन हो सकती है, या टॉर्जन हो सकती है। टॉर्जन भी तो हो सकती है ना उससे, पेन जो है। तो इसमें तो खैर बिकॉज इट्स नॉट अ सिस्ट, तो रप्चर तो हो नहीं सकती। तो टॉर्जन भी हो सकती है, कोएक्सिस्टेंट डीजनरेशन भी हो पैथोलॉजी हो सकती है। सकती है।
क्या हो सकती है? एंडोमेट्रियोसिस या पीआईडी हो सकता है साथ में, को एग्जिस्टेंट एंडोमेट्रियोसिस या पीआईडी भी हो सकता है पेन की कॉज। देखो पेन तो तब ना, अब आपकी हिस्ट्री में कोई चीज एंडोमेट्रियोसिस की तरफ जा ही नहीं रही थी, ना उसको पीरियड से रिलेटेड पेन थी, ना उसको उस चीज से रिलेटेड थी, ये जो है क्या उसे कहते हैं, पीआईडी। ना उसकी फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट आया हुआ है। तो फिर वो जब आपने एडिनेक्सल या ओवेरियन मास खाया तो उसके अंदर ये चीजें कवर हो गई ना। यस मैम, डीजनरेटिव चेंजेस ही कह सकते हैं। हाँ जी। हाँ, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड कहते तो वो और भी अच्छा डीडी हो जाता, बिकॉज शी इज हियर विद पेन, और पेन ही और पेन और इतना बड़ा जो मैस के साथ उसने प्रेजेंट किया, इसकी सर्जरी का बेसिकली प्लान भी इसीलिए बना बिकॉज शी इज हैविंग अ मैस एब्डोमेन, उसको मैस डिस्टर्ब कर रहा है और पेन उसको हो रही है इस वजह से। एंड शी इज ओनली 35, डेफिनेटली दिस फाइब्रॉइड इज गोइंग टू ग्रो ओवर नेक्स्ट 15 years। ठीक है, और बताओ। एक्सक्यूज मी जी मैम, मारिया। इसको मैस मैस जो है वो मैस का मतलब इट्स अ ह्यूज मैस ना, तो उसकी वजह से भी तो क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है ना, बिकॉज ऑफ द वेट एंड ऑल दैट, इट्स हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंप्रेसिंग द सराउंडिंग डिस्कम्फर्ट, एरिया। यस बिल्कुल, डिस्कम्फर्ट इटसेल्फ इस मैस की वजह से भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाकी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, किसी का कोई आइडिया अबाउट के कोई ऑप्शंस मैनेजमेंट? देखो आपने बहुत अच्छा बोला, डॉक्टर यू स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। जी हाँ। मैं पूछना जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मैं पूछना चाह रही थी 28 वीक साइज पे मैं इंफ्रा अम्ला आकर मिड लाइन इंसिजन दूं, ज्यादा बेहतर नहीं है, या फिर इन्होंने पेनिस्टल इंसिजन दिया था? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठहरो मैं एक दफा बता दूं, आपने बहुत अच्छा सब जो स्टार्ट किया, स्टार्टेड ऑफ विद द काउंसलिंग, वो ठीक है। काउंसलिंग के अंदर आपने डायग्नोसिस बड़े क्लियर वर्ड्स में बताया, बट साथ ही बोल दो क्योंकि नेक्स्ट बात मरीज यही सुनना चाहता है कि इट्स अ बिनाइन कंडीशन। ठीक है, आपने साथ ही, सॉरी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम हेलो। आ रही है। अच्छा अच्छा, साथ ही आपने उसका डायग्नोसिस बोल देना है, पता नहीं मेरी स्क्रीन ही बदल गई है, सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, डायग्नोसिस बोलो, साथ ही बोलो कि इट्स अ बिनाइन कंडीशन, इट हैज गॉट वेरी लेस लाइकली चांसेस ऑफ गेटिंग मैलिग्नेंट। पेशेंट ये सुनना चाहता है, उसके बाद आपने बिल्कुल ठीक उसको लेके गए टुवर्ड्स सर्जरी, बट बीच में आपने बोला कंजर्वेटिव वर्सेस सर्जरी, शी इज ऑप्टिंग फॉर सर्जरी, व्हाट इफ शी ऑप्ट्स फॉर कंजर्वेटिव, फिर क्या करते? नो मैम, कंजर्वेटिव नहीं कहना था, वो ये गलत हो बहुत ही गया। बड़ा ब्लंडर था, बेइंतहा बड़ा ब्लंडर। बहरहाल चलो, वो आपने कर दिया, उसके बाद आपने जब आपने सर्जिकल ऑप्शन में बात की, तो सर्जिकल में उसको ऑप्शंस तो दो, आप डायरेक्ट टीएच पे चले गए। आप उसे ऑप्शंस तो डिस्कस करो, मे बी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, मे बी मायोमेक्टमी। ओके फाइन, मायोमेक्टमी आपकी लिस्ट पे एंड पे आती है, तो पहले आप हिस्टेरेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी में भी देन, अच्छा चलो पेशेंट ने डिसाइड कर लिया नो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, हिस्टेरेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी में भी आगे उससे ऑप्शंस तो डिस्कस करो, मे बी लेप्रोस्कोपिक, मे बी ओपन। ओपन में फिर आगे अपनी इंसिजन से शुरू करो। ये वो स्टेप्स हैं जो आपने हर मरीज में करना है। एडमिशन, एडमिशन के बाद डायग्नोसिस, डायग्नोसिस से अगला चीज जो हमारा मरीज सुनना चाहता है वो है कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है, सो इट्स नॉट मैलिग्नेंट। तीसरी चीज ये कि आई नीड टू डू इट थ्रू सर्जरी और वट एवर। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की भी जरूरत है रिगार्डिंग हर दिस थिंग, क्या उसे कहते हैं, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव एंड मे बी ट्यूबरक्लोसिस एज वेल, जो कि प्रीवियसली था, अगर अभी किसी ने पता करना है तो वो देख लें कि क्या था। अच्छा, उसके बाद आपने उसको जब आप सर्जरी पे, फिर जब जैसे ही आपने सर्जरी की बात की, ट्रीटमेंट की बात की, तो ऑल द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, डायरेक्ट नहीं आप जा सकते कभी भी। फिर आपने सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की लिस्ट बताई, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, हिस्टेरेक्टमी एंड नंबर 3 मायोमेक्टमी। फिर उसके अंदर पेशेंट ऑप्ट्स फॉर हिस्टेरेक्टमी, तो हिस्टेरेक्टमी के अंदर फर्दर उसकी लेप्रोस्कोपिक भी अवेलेबल है जो आपके ख्याल से बेहतर है, और फिर ओपन। अच्छा, ओपन डिसाइड हुई है, फिर ओपन के अंदर इंसिजन। इंसिजन की बात पहले भी मैं आपको कई दफा अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, व्हेन यू आर एग्जामिनिंग द पेशेंट, व्हेन यू आर एग्जामिनिंग द मास, तब हम ये भी एग्जामिन कर लेते हैं कि हमने इस पेशेंट को किस इंसिजन से ओपन करना है। तो आपने वहीं पे ही, हम जब एग्जामिन, आप उसको इस सेंस में करो कि आपको इफ इट्स अ मोबाइल मास, अभी एक डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसको मिड लाइन से करूंगी, तो ठीक है, इफ यू थिंक सो, अदरवाइज यस यू कैन इजीली डू इट। आपकी थोड़ी सी एक्सपर्टीज पे भी आ जाता है, अगर आप लो ट्रांसफर इंसिजन दे रहे हो, तो अगर एग्जामिनर का व्हाई नॉट मिड लाइन, तो आप कह सकते हो बिकॉज इट्स मोबाइल, तो मैं इसको इजीली लो ट्रांसफर इंसिजन से निकाल सकती हूँ। तो वो डिपेंड करता है। बट अगर आप मिड लाइन कहना चाहते हो तो 28 वीक साइज तक में तो यस जस्टिफाइड है कि आप उसको मिड लाइन भी दे दो। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें और आपने मिस की, यू मिस्ड अबाउट हर ब्लड अरेंजमेंट, यू मिस्ड अबाउट हर हर पैप स्मीयर, यू मिस्ड अबाउट हर, अच्छा, वाई एंडोमेट्रियल बायोप्सी, इसके बारे में क्या ख्याल है?
Ma'am, because she is 35 years age and I am going for a definitive surgical management in the form of total abdominal hysterectomy. I want to rule out about the conservation of the ovaries, and to look for the any if and to look for the endometrial hyperplasia status, coexistent endometrial pathology. If there is presence of any endometrial pathology, I would go for the removal of the ovaries also. बाकी लोग बताएं, एंडोमेट्रियल कराओगे कि नहीं कराओगे? मैम इसमें जैसे कि क्लियर आपको एक मास फाइब्रॉइड मिल रहा है अल्ट्रासाउंड में, तो फिर हमें एंडोमेट्रियल और जो है ना कोई इसको ब्लीडिंग की कोई हिस्ट्री नहीं है। नंबर सेकंड नंबर एग्जैक्टली, फिर क्यों कराओगे? And there is 3% chance of coexistent endometrial malignancy with the fibroid uterus. I just want to rule out that, and not putting my patient at risk of secondary surgery for the removal of that. डॉक्टर वैसे भी कुछ लेकिन मैडम उसमें मेट्रोरेजिया की हिस्ट्री भी होती है, वो कहते हैं देयर इज चांस के एंडोमेट्रियल सीए कैन कोएग्जिस्ट बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट विद मेट्रोरेजिया। एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट देखो होगा क्या, आपने किया क्या, एंडोमेट्रियल सैंपलिंग की, उसके 10 दिन बाद रिपोर्ट आई, उसके बाद आपने डिसाइड किया आपने करना क्या। ना ही पेशेंट को कोई ब्लीडिंग का मसला है, शी इज 35 इयर्स ओनली, उसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का, यानी कि ना ही उसके अंदर कोई सबफर्टिलिटी है, ना ही उसके अंदर उस तरह से ओबेसिटी है, ना ही उसके अंदर डायबिटीज है, ना ही उसके अंदर पीसीओ की कोई चीज है। 35 year itself is not an age for having endometrial hyperplasia or endometrial carcinoma. There is fibroid uterus, yes. 3% incidence we need to check, because I don't agree with this incidence. इसका कोई reference या वो बताओ। We need to check it, 3% with fibroid uterus, 3% endometrial carcinoma with fibroid uterus, and then any recommendation for doing endometrial sampling before myomectomy. I don't really recommend, and I don't agree to this thing, except that there is a very good reference. I don't think there is a good reference for it. So in a 35 year of age, if you go for endometrial sampling, an examiner, काफी जो बड़े एग्जामिनर्स हैं वो आपको इस बात पे फेल भी कर सकते हैं। 35 इयर्स में बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या मैलिग्नेंसी को रूल आउट। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मे बी BMI इनफर्टिलिटी, तो मे बी ज्यादा था ना ओबेसिटी, मे बी पेशेंट का, एस्ट्रोजन। 28 kg था, BMI 28 kg था। But she was not having irregular periods. Her periods were normal. She was not having irregular. उसके कोई पीसीओ की तरफ वो नहीं जा रही थी। उसका मतलब इससे बेहतर अगर आप बीटा इसी मांग ले तो बहुत बेहतर हो जाता। बट 35 इयर्स के अंदर अगर फाइब्रोइड यूट्रस की पेशेंट आती है, a big no for endometrial sampling. डॉक्टर मैंने वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाने वाली बात है। लेकिन फिर भी अगर तो आप अगर उसे जस्टिफाई कर सकते हो कि इसको इतना ओलिगोमेनोरिया, इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स हैं, कुछ कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आया क्या कहा है, तो इस वजह से तो डेफिनेटली 35। जी डॉक्टर फशी, डॉक्टर रूबा आप कंप्लीट कर लें अपनी बात, मेरा क्वेश्चन है वो बाद में मैं पूछ लेती। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, तो इस वजह से 35 इयर्स के अंदर इरेगुलर ब्लीडिंग के अंदर भी 2 इंडिकेशंस होती है एंडोमेट्रियल। 35 इयर्स में कौन सा वाला एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है? टाइप 2 वाला ना, ये तो वो वाला होता ही नहीं है। एडिनोकार्सिनोमा जो टाइप 1 वाला है वो भी नहीं होता। 35 ईयर के अंदर एंडोमेट्रियल सैंपलिंग दो वजूहात में जाके जस्टिफाई होगी। एक वो वजह कि जिसमें इरेगुलर ब्लीडिंग है जो प्राइमलेट और किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। दूसरी वो वजह जब बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं पेशेंट के अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के, विच बेसिकली इंक्लूड्स हिस्ट्री ऑफ पीसीओ। वो पूरी पीसीओ वाली पिक्चर है, उसके स्कैन के ऊपर एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत ज्यादा आई हुई है, हाइपर ईस्ट्रोजन के उसके अंदर आपको मिल रही है हिस्ट्री, या फिर उसके क्या उसे कहते हैं, या इनफर्टिलिटी के साथ है। एवरी पेशेंट विद फाइब्रोइड यूट्रस। मैम अगर यही पेशेंट 40 इयर्स में आएगी, 40 के बाद हम कंसिडर करेंगे? अब तो 40 नहीं, अब तो 45 इयर्स एज हो चुकी है एंडोमेट्रियल सैंपलिंग की। सब नंबर 1 बात तो ये है। दूसरी चीज ये कि 40 इयर्स विद फाइब्रोइड के अंदर एंडोमेट्रियल सैंपलिंग अगर वो इरेगुलर ब्लीडिंग है फिर भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। फिर भी मैं कहूंगी कि 45 के बाद करो। 40 इयर्स विद इरेगुलर ब्लीडिंग एंड फाइब्रोइड यूट्रस, यू डोंट नीड टू डू इट। गाइडलाइंस कहती है 45 के बाद करो, एक्सेप्ट कि 40 के ऊपर वो एंडोमेट्रियल थिकनेस भी ज्यादा आ रही है स्कैन के ऊपर।
ओके मैम। मैम चले ठीक है ना, तो यू हैव टू बी मैम वेरी एक और क्लियर, मेरा ये क्वेश्चन चीज था। बहुत क्लियर होने की जरूरत है। मैम 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 एक इसका जी पेशेंट मतलब पूछिए, क्या फिर हम है? क्लास खत्म कर रहे हैं क्योंकि मेरा वो शुरू होने लगा है अगला काम। मैम हाँ 30 पूछिए। डॉक्टर मैम एक रूबा पेशेंट था। मैम एक मैंने पेशेंट डॉक्टर देखी रूबा थी। यार एक सेकंड मुझे एक बात क्वेश्चन प्लीज। मैम मैंने एक पेशेंट चलो देखी दोनों थी, पूछ लो उसका इस बारी तरह बारी। का हाँ 35 इयर्स एज थी उसकी, और जो है उसका 10 वीक साइज यूट्रस था। शी वाज प्रेजेंटेड विद इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग एंड उनके स्कैन के ऊपर हमें कॉम्प्लेक्स सिस्ट मिल गई थी। 10 वीक साइज यूट्रस था और ये सारा उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट ली थी, वो फेल्ड थी। तो हमने कॉम्प्लेक्स सिस्ट के ऊपर उनका सारा वर्कअप किया था। हमने उनकी ठीक है लेप्रोटमी प्लान की थी, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी। मैम फिर मैं ये पूछना ठीक है। चाहती थी कि उस पेशेंट की बीटीएल हुई भी थी, तो उसके 10 वीक साइज यूट्रस के लिए जो फील्ड मेडिकल ट्रीटमेंट पहले ही हो चुकी है, उसके लिए हम टीएच उसको डिस्कस करेंगे या मायरीना के साथ उसको डिस्कस करेंगे? मायरीना, मायरीना। मैम शी हैज कंप्लीटेड हर देखो फैमिली पहले एंड हैविंग कम, द बीटीएल डन। नहीं देखो फाइब्रॉइड में आपने क्यों की टीएच पहले, क्योंकि आप उसको रिकरेंस से बचाना चाह रहे हैं, दूसरा उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है नहीं। मायरीना की like more than 97% success rate. Direct hysterectomy, even family is complete for an ovarian mass which is not malignant is not actually recommended. आप उसकी सिस्टेक्टमी करो और मायरीना दो उसको। उसकी वजह ये है कि मायरीना से इट्स लाइक नियरली 97% सक्सेस, और आप उसको बहुत बड़ी मॉर्बिडिटी से बचा सकते हो। हिस्टेक्टमी में व्हाट इफ यू एंड अप इन डैमेजिंग यूरेटर, व्हाट इफ यू एंड अप इन डैमेजिंग ब्लैडर एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी मैम मॉर्बिडिटी बढ़ा ड्यूरिंग ऑपरेशन ही दो। उसको तो अगर मायरीना बेहतर रख देंगे। ऑप्शन और है तो फिर आप वो स्टार्ट ऑफ, हाँ ड्यूरिंग सर्जरी उसको मायरीना साथ रख दो। ठीक है, अफशीन का सवाल मैम जल्दी से ले अगर लेते यही हैं फिर मैं पेशेंट क्लास अगर खत्म यही डॉक्टर करती पेशेंट रूबा ये फर्टिलिटी ना प्लान के साथ आती है कि मुझे एक प्रेगनेंसी भी चाहिए, तो फिर हम 10 वीक साइज यूट्रस के इरेगुलर जनरल ब्लीडिंग को फिर किस तरह फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट है और हम मायरीना भी उसको ऑफर नहीं फिर कर हार्मोनल, सकते? फिर बेटा हार्मोनल, फिर हार्मोनल देते ना, फिर मायरीना ना देते। मैम फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट ही देते फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ठीक है, फिर हार्मोन, इरेगुलर। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी जी, अफशीन। डॉक्टर डॉक्टर रूबा मैंने पूछना 35 इयर्स की ये पेशेंट है, इसमें स्ट्रेक्टमी करना इज इट जस्टिफाइड एट दिस यंग एज ग्रुप ऑल्दो हर इट्स फैमिली इज जस्टिफाइड, ये कंप्लीटेड? बड़ा बिल्कुल, और फैमिली इज कंप्लीटेड, इट्स एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है, जाहिर बात है। ऑप्शंस मैंने बोले जिसमें यूट्राइन आर्टरी नंबर 1, नंबर 2 पे हिस्टेरेक्टमी, नंबर 3 पे मायमेक्टमी, इसलिए नंबर 3 पे मेनोपॉज। इसकी रिकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड हो सकती है, देयर इज अराउंड 20% चांस ऑफ रिकरेंस। वैसे तो ओपन सर्जरी के अंदर लेस देन 15% है, लेप्रोस्कोपिक में अराउंड 20% ऑफ रिकरेंस। बट स्टिल अगर रिकरेंस हो जाए तो क्या आप अगली ऑपरेशन में इसकी हिस्टेरेक्टमी करोगे? अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है तो ओवरी कंजर्वेशन के साथ आप उसकी हिस्टेरेक्टमी कर सकते हो। मैम तो ये हम क्लियरली अपने अंदर ये याद कर लेना कि मायोमेक्टमी हमने जब ही करनी है जब पेशेंट फर्टिलिटी चाहती हो, उसके अलावा मायोमेक्टमी का ऑप्शन नहीं देना। इज इट करेक्ट? हाँ, नहीं ऑप्शन तो देना है। मैंने नंबर 1 2 3 बोला है ना, नंबर 1 इज दैट ऑप्शन जो ऑप्शन आपके देना। ख्याल से बेस्ट है। यस, ऑप्शन इज ऑलवेज देयर ना, क्या पता सोशल इश्यूज की वजह से वो नया यूट्रस निकलवाना चाहे। मैम सोशल ठीक है, इश्यूज कोई क्वाइटल डिसफंक्शन तो नहीं होता आफ्टर द रिमूवल ऑफ नहीं हमारे मुल्क में बड़े सोशल इश्यूज हैं, यूट्रस निकल जाए तो अब बहुत सारी फैमिलीज में वो बड़ा उसको करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इवन पढ़ी लिखी फैमिलीज में दे डोंट वांट टू गेट देयर यूट्रस रिमूव्ड। ठीक है, ओके मैम। यस चलो मैम। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। अब आज रात वाली क्लास नहीं होगी, अब हमने यही क्लास कर ली है, तो अब इंशाल्लाह सैटरडे को क्लास होगी। आप लोग डॉक्टर राशिद और डॉक्टर शनाज की क्लासेस के लिए वॉलंटियर कर दो आज ही। ठीक है, टॉपिक्स मैडम मैंने प्रेजेंट करना है, मैडम मैंने उनको प्रेजेंट करना है, डॉक्टर डॉक्टर शहनाज को। राशिद को, डॉक्टर शनाज को अपना डॉक्टर टॉपिक भी शहनाज लिख को। के, ठीक है, टॉपिक और जी केस थोड़ा सा समरी लिख के भेज देना, और डॉक्टर राशिद के लिए भी जी कोई मैं भेज वॉलंटियर देती हूँ। कर ले, वॉलंटियर करके केस समरी भेज दो आज, जिसने डॉक्टर राशिद को करना है। ठीक है, चलो गुड लक, ये हाफिज। अपलोड होगा? सॉरी टू हाँ हाँ थैंक अपलोड यू हो जाएगा, डॉक्टर। हो जाएगा। ओके, थैंक यू थैंक हाफिज यू। वो एंड करने में थोड़ा हाफिज। सा मुझे वो इशू हो रहा था, वॉइस इशू। ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर रूबा, थैंक यू।